Our student and dear friend, in fourth period of standard 10, subject maths 1, linear equation in two variable, we have to study solution of simultaneous equation in two variable by graphical method. Before to study this method, we have to understand some concept we studied in standard 9 about graph. Before to start this, I will suggest you take a graph copy, which is A4 size, minimum A4 size. Use HB pencil, and every work done by you must be by HB pencil on this graph paper. But for convenience, I am using this black pen, but you don't use this. बेटा आपको A4 साइज की कॉपी लेना है कम से कम, और HB पेंसिल से हर एक काम ग्राफ का जो साइड है ग्राफ के ऊपर HB पेंसिल से लिखना है, या तो डार्क पेंसिल से। मैं यहाँ पे ब्लैक पेन यूज करूँगा, आपको पेन यूज करना नहीं है। और ये जो राइटिंग, ये जो साइड है, ये साइड पे आपको ब्लैक, ब्लू, किसी भी पेन से आप ये साइड पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ के लिए थोड़ा A4 साइज का पेपर होना चाहिए आपके पास में, जिसके यानी मिनिमम लेंथ हो और विड्थ अच्छी हो। छोटी ग्राफ बुक यूज मत करना। तो सबसे पहले ग्राफ बुक में यहाँ पे जितने भी लाइन्स होगी उसके सेंटर लाइन यूज करना। जैसे सेंटर लाइन ये ली है मैंने, और ये लाइन खींचो आप, इससे बना लो आप नंबर लाइन, सेंटर में 0। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो अपन नंबर्स लिखेंगे, वो लाइन के नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं। जैसे सेंटर में ये मान लीजिए, ये सेंटर पॉइंट, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ये -8। आपकी कॉपी यदि बड़ी है, ग्राफ पेपर बड़ा है, तो आप इस नंबर को बढ़ा सकते हो, अदरवाइज 8, 9 ओके। उसके बाद ड्रॉ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट O या 0। Okay. In the similar manner, write numbers towards left, not in right. Just here, upward direction, positive numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. In downward direction, negative numbers here, -1, -2, -3, -4, -5, -6,
-7, -8, -9, -10, -11, and -12. Okay. Then distance between 0 and 1 is 1 cm. There is small dark line which is at a distance of 5 mm, and there are lines. Each line is at the distance of 1 mm, and this distance 0 to 1. If we take 1 unit, and this 1 unit is equal to 1 cm. Therefore, at every graph paper, you write scale this side on right top corner, scale on both the axes, 1 cm equal to 1 unit, and you draw this graph at least 4 to 5, or maximum 10 to 15. I already draw this graph like this, and I already write the problem to avoid wastage of time in this way. Okay, and we have to study some basic terms which we learn in standard 9. This horizontal vertical line, and this is horizontal number line, and this is vertical number line. When it comes together, and this whole is a coordinate system. This line we write here x dash, and this line known as x axis. Right. Line x dash equal to x axis, and this vertical line we write here y dash, name of line y dash, and line y dash is a y axis, and this becomes coordinate system complete. This segment, this ray O, we denote this point of intersection as O. This is 0, this is O. Ray O X, this is called positive X axis. Positive X axis. And this ray O X dash, this is called negative X axis. Ray O X dash, negative X axis. This ray O Y, ray O Y is positive Y axis, and this ray O Y dash is negative Y axis. तो ये पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस से कंप्लीट एक्स एक्सिस, कंप्लीट वाई एक्सिस. ये जो रीजन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है? ये रीजन बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस. फर्स्ट क्वाड्रेंट अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये है सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट. उसी प्रकार ये निगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसके बीच का जो रीजन है उसे बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट. रीजन बिटवीन नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस. ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसके बीच का डिस्टेंस रीजन है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस. थर्ड क्वाड्रेंट चाहिए रीजन बिटवीन नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस.
और ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस, इसे बोलते हैं 1/4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट क्या है ये? रीजन बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, फिर अपन पॉइंट को प्लॉटिंग पढ़े हैं। जैसे ये पॉइंट है सी को, इस पॉइंट पे भी प्लॉट करना है, मान लो नाम ले लो इसका ए। तो यहाँ पे x3 है, y4 है, तो x3 और y4 पॉजिटिव दोनों, तो y4, x3 x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 4, तो दोनों पे जब आगे बढ़ाए यहाँ पे, तो ये अपने को पॉइंट मिल जाता है 3 4। इस तरह इसे डॉट करना और इनसर्कल करना। दूसरा पॉइंट मान लेते हैं बी, बी 5 -3। अब देखो x है 5 और y है -3, तो x 5 ये है और y -3 ये आएगा। एक पॉइंट कहाँ जाएगा? ये यहाँ, ये वाला पॉइंट, ये मान लीजिए पॉइंट बी। कौन सा पॉइंट? ये 5 -3। दूसरा पॉइंट ले लेते सी, -3 -4। अब देखो x है -3, x एक्सिस से -3 ये है, और -4y, ये -4y, y एक्सिस से -4 है, तो पॉइंट कौन हो जाएगा? यहाँ ये वाला, ये पॉइंट की हो जाएगा -3 -4। सबसे पहले x लिखने का, फिर y। फिर दूसरा पॉइंट लेते हैं अपन, मान लो डी 7 -7 + 5, x -7 और y है 5, तो x -7 है ये है, और +5 y पे ये वाला पॉइंट है। दोनों कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे, ये पॉइंट हो जाएगा d -7 5। तो इस तरह पर पॉइंट को प्लॉट करते हैं। देख, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट है, उसके लिए कोऑर्डिनेट बताना है। जैसे मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिया, ये n, तो n के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहाँ से परपेंडिकुलर खींचो x एक्सिस के ऊपर और फिर y एक्सिस के ऊपर। वो x एक्सिस कहाँ मिलता है? 5 पे, और y एक्सिस को 8 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, 8। इस तरह आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलते आना चाहिए। दूसरी बात देखो, यहाँ पे भी कोई पॉइंट है ये, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? इस पॉइंट के देखो, ये है x पे कहाँ मिल रहा है? x एक्सिस को 3 पे और y पे 0 पे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 0। इसके कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के 6 0, इसके -5 0। यानी x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसलिए देखो x एक्सिस पे क्या होता है? उसका y कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कैसा है? 0 होता है। तो इस x एक्सिस का अपन इक्वेशन लिखते हैं y = 0। देखो, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0। इधर सेम मैनर, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है y एक्सिस पे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के, ये पॉइंट मान लो n लिखते हैं अपन। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो, तो परपेंडिकुलर से यहाँ से x एक्सिस पे ये आएगा 0 पे, तो x 0 और y 4। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? y एक्सिस के ऊपर -3 जो है, इसके होंगे 0 -3, इसका होगा 0 -8, इसका होगा 0 10। यानी y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। और अपन लिखते हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x = 0, x = 0। ये जो x एक्सिस और जो y एक्सिस है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, इसको बोलते हैं पॉइंट वो, और वो को बोलते हैं ओरिजिन। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ
ओरिजिन क्या होगा, O00। अब उसी तरह ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है, ये इसे बोलते अपन एक्स एक्सिस, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू 0। ये जो लाइन है y एक्सिस, इसका इक्वेशन है x इक्वल टू 0। अब कोई भी लाइन, जैसे ये लाइन से दिया मैंने, ये वाली, ये लाइन कैसी है, x एक्सिस के पैरेलल, और कहाँ कट कर रही है वो, y एक्सिस को 3 पे कट कर रही है। तो इस लाइन पे कोई भी जो पॉइंट लेंगे अपन, उसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। तो इन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इक्वल टू ये क्या है, ये इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विद द y एक्सिस। y एक्सिस को जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन का, उस पॉइंट का क्या है, कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y एक्सिस। जैसे अब ये लाइन यदि मान लो यहाँ से जा रही है कोई लाइन, ये लाइन, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू -5। इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू, उसी प्रकार जैसे y एक्सिस है, y एक्सिस का इक्वेशन हम क्या लिखे हैं, x इक्वल टू 0। तो मान लो ये लाइन है कोई भी, तो y एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करती है, ये लाइन। ये लाइन के ऊपर कहीं पे भी देखोगे, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, 5 5 5 5 5। तो इसी तरह लिखेंगे अपन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इक्वल टू b। तो b क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विथ x एक्सिस। तो ये जो x एक्सिस को कट कर रही है लाइन, जो y के पैरेलल है, इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 5। इसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 5। इस अपन इधर ही ले लेते हैं, ये लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है और x एक्सिस को -8 पर कट करती है, इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -8। तो आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए बाय ग्राफिकल मेथड, इतनी बातें मिनिमम आपको जरूरी आना चाहिए। तो अपन पढ़ते हैं बुक्स के प्रॉब्लम। जैसे पहला प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में पहले एक्टिविटी दी है। देखो एक्टिविटी जो आपके बुक में ये दी है, एक्टिविटी सॉल्व द फॉलोइंग साइंटिफिक इक्वेशन। तो ये साइंटिफिक इक्वेशन दी है, यहाँ पे 3 पॉइंट दी है, आपको तो 4 लेना है, सॉरी 4 दी है, ठीक है। तो देखो एक्टिविटी solve the following simultaneous equation by graphical method. Complete the following table to get order pair. इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x पहले लिया है 0। तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट किए तो y इक्वल कितना आएगा, मैं एक रफ पेज पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। x माइनस वाई इक्वल टू 1, x इक्वल कितना दिया है, पुट x इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन। क्या मिलेगा, 0 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल रहेगा -1। तो पहली ऑर्डर पेयर हो जाएगी, यहाँ पे आएगा -1।
ऑर्डर पेयर हो जाएगी पहली 0, -1। फिर क्या किया है, y इक्वल टू 0 पुट किया है, पुट y इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन, इसे देते हैं 1, इक्वेशन 1 क्या आएगा, x -0 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x का वैल्यू कितना आ रहा है 1, ये 1 ऑर्डर पे जाएगा 1 0। फिर x को 3 पुट किया है, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 क्या आएगा, 3 माइनस y इक्वल टू 1। x की जगह पर 3 पुट किए, 3 को ट्रांसफर कर दिए, -y इक्वल टू 1 -3, -y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 2, दोनों माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 2 क्या आ गया, y इक्वल टू 2। आगे y इक्वल टू -3 पुट करना है, देखो पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 ये है, x -3 है इक्वल टू 1, x प्लस 3 इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 -3, x इक्वल टू -2, तो x कितना आया -2, यहाँ लिखिए अपन ये -2। अब ऑर्डर पेयर मिला, ये 3 2, ये -2 -3, तो देखो इस लाइन के लिए अपने को 4 ऑर्डर पेयर मिले हैं, एक है 0 -1, दूसरा है 1 0, तीसरा है 3 2, और बाद में है -2 -3। उसी प्रकार अपन इस लाइन के लिए, कौन सी लाइन, 5x - 3y इक्वल टू 1, इसके लिए ऑर्डर पेयर निकालेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे x क्या लेना है, y क्या लेना है, कुछ दिया हुआ है, तो अपन इसका यूज करेंगे और ये टेबल को कंप्लीट करेंगे। जैसा इक्वेशन है 5x - 3y इक्वल टू 1, यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, तो आप 2 पुट करेंगे, 5 इंटू एक्स 2, 2 -3y इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 10 -3y इक्वल टू 1, 10 को ट्रांसफर कर दो, -3y इक्वल टू 1 -10 इक्वल टू -9, ये माइनस माइनस कैंसल, y इक्वल टू आएगा 9/3 इक्वल टू 3, y का वैल्यू आया यहाँ पे 3, ऑर्डर पेयर बन जाएगा 2 3। आगे क्या दिया है, y की जगह 8 रखा है, x अपने निकालना है, पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2, आप इसे नंबर 1 दे दो, इसे नंबर 2 दे दो, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करेंगे मैं 8, 5x - 3 इंटू y की जगह 8 इक्वल टू 1, ये 5x - 24 इक्वल टू 1, 5x, एक 24 को उधर ट्रांसफर कर दो, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + 24 इक्वल टू 25, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल आएगा 25/5, x इक्वल टू 5, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, तो एक और ऑर्डर पेयर मिला 5, 8। आगे y इक्वल पुट करना है 2, पुट y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, तो पुट करो इक्वेशन 2 में 5x - 3 इंटू -2 इक्वल टू 1, 5x माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2 6 इक्वल टू 1, 5x इक्वल टू 6 को ट्रांसफर कर दो, 1 - 6 इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/5 इक्वल टू -1, x का वैल्यू कितना आया -1, ये रखेंगे अपने यहाँ पे -1, ऑर्डर पेयर मिला अपने को -1 -2, -1 -2, फिर x इक्वल टू 4 दिया है, अपने को y निकालना है, अगेन पुट करो x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, पुट
x इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2 क्या मिलेगा अपने को? 5 ये जो है 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 यहाँ पे पुट करते अपन 5 इंटू -4 माइनस 3y इक्वल टू 1, हो जाएगा -20 माइनस 3y इक्वल टू 1। इसको ट्रांसफर कर दो उधर, -3y इक्वल टू 1 प्लस 20 इक्वल टू 21, ये -3 है यहाँ पे, इधर डिवाइड हो जाएगा y इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल टू -7, y इक्वल टू -7, y मिल गया अपने को, क्या आता है -7। ऑर्डर पे मिला अपने को -4 7। अब देखो आप ये जो वर्क है पूरा आप रफ में करो, ओरली करो या कैसे भी करो, इससे कोई लेन देन नहीं है। आपके ये जो टेबल है, एक टेबल कंप्लीट अच्छे से होना चाहिए। चाहो तो आप अपने बुक में साइड में लाइन खींचकर रफ जैसे वर्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये रफ वर्क आपको करना है और ये जो है ऑर्डर पेयर बराबर निकालना है आपको। मैंने रफ वर्क कॉपी भी किया ताकि यहाँ पे ज़्यादा गंदा ना दिखे, आप चाहे जैसे करो आपके मर्जी। ओके, तो हमें ऑर्डर पेयर्स मिले हैं। पहला इस लाइन के लिए x माइनस वाई इक्वल टू 1 के लिए 0 -1। देखो एक वर्क आपको पूरा करना है जो मैंने पहले करके दिखाया है, बार बार नहीं करूंगा मैं, आप लोगों को करना पड़ेगा हर वक्त। या तो आप भी 10 से 12 ग्राफ के ऊपर ऐसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और स्केल लिख के रख सकते हो। इस लाइन के लिए पहला पॉइंट है 0 -1, मतलब x 0 है, वो कहाँ रहेगा पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर, ये 0 और ये -1, ये वाला पॉइंट है 0 -1। दूसरा पॉइंट है 1 0, x1 y0, ये वाला पॉइंट है। ये तीसरा पॉइंट है C2 x3 और x3 y2, ये वाला पॉइंट है। करो आंसर करो। और चौथा पॉइंट है -3 -2 -3, x -2 y -3, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। अब देखो इस सभी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट लिख दो। ये वाला पॉइंट कौन सा? 3 2। ये पॉइंट 1 0 1 0, ये पॉइंट 0 -1 और ये वाला पॉइंट -2 3 -2 -3। ठीक है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया अपन ने। और ये चारों पॉइंट से जाने वाली लाइन खींचो। यानी ये वाली जो लाइन है, ये सब वर्क आपको पेंसिल से करना है। पेन से कर रहा हूँ, आपको पेंसिल से करना है। तो ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये x माइनस वाई इक्वल टू 1 लाइन लिखोगे और इसे लॉक कर देना। आप क्लियर देखिए कौन सी लाइन है। सेकेंड लाइन है ये वाली 5x माइनस 3y, उसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आए हैं ऑर्डर पेयर 2 3, x2 y3, ये वाला पॉइंट है ये। दूसरा 5 8, x5 y8, सॉरी x5 y8 5 8। तीसरा है -1 -2, x है -1 y है -2, ये वाला पॉइंट। और तीसरा है सॉरी चौथा है -4 -7, -4 -7, x -4 y -7, ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, ये वाला। तो 4 पॉइंट है, 1 2 3 और 4।
यहाँ से जाने लाइन खींचो, आप बड़ी स्केल ले सकते हो, फिलहाल बड़ी स्केल मेरे पास नहीं है तो इसी का यूज करूंगा और आगे एक्सटेंड करूंगा इस लाइन में। आगे इस पॉइंट से आएंगे, कौन सी लाइन है ये वाली, 5x माइनस 3y इक्वल टू वाई, 5x माइनस 3y इक्वल टू वाई। ये लाइन ड्रा करने से पहले आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और स्केल लिखना जरूरी है। अब देखो ये लाइन, ए लाइन कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे, तो आप यहाँ पे लिखोगे आंसर, जो इक्वेशन है एक्स वाई में है, एक्स कामा वाई इक्वल टू क्या आएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो अपने पॉइंट प्लॉट किए उसे लिख लो पहले, ये वाला पॉइंट है -4 -7, -4 -7, ये पॉइंट -1 -2, -1 -2, ये वाला पॉइंट 2 3, और ये वाला पॉइंट 5 8। तो आंसर का आंसर ऑर्डर पेयर में एक्स कॉमा वाई पैरेंथेसिस में इक्वल टू क्या आएगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला दोनों लाइन का, ये आएगा -1 कामा -2, क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, उस लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड 5x minus 3y equal to 1. This is the answer or solution of this two simultaneous equation by graphical method. तो आंसर कौन सा आता है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही होता है उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर। तो क्या पूछा है यहाँ पे, देखो प्लॉट द अबोव ऑर्डर पेयर्स ऑन द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लॉट कर दिए सभी पॉइंट्स को। ड्रा ग्राफ ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन भी ड्रा कर दिए अपन ने ग्राफ। नोट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू ग्राफ, ये जो दोनों ग्राफ निकाले उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नोट किए, क्या क्या नोट किए अपन ने, -1 -2, ग्राफ हो गया। राइट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये सॉल्यूशन हो गया। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू -1 -2, और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वही होता है सॉल्यूशन। अब इसी के आगे, इसी के ऊपर एक्टिविटी दी है, सेकंड एक्टिविटी, यहाँ पे क्या बोला है, सॉल्व द अबोव इक्वेशन, इस दोनों जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड से आपको उसे सॉल्व करना है। एंड चेक योर आंसर ऑब्टेन बाय ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड से जो आपको आंसर मिला, कौन सा आंसर मिला, -1 -2, उसको चेक करना है सही या नहीं है। तो अपन सॉल्व करते हैं। आंसर इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। 5x माइनस 3y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। अब देखो अपन जो कोफिशिएंट सेम करेंगे, चाहे x करे या तो y के करे, अपन y का कोफिशिएंट सेम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3y। ए बी माइनस है, ए बी माइनस है, साइन सेम है, तो अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को 1 से। तो क्या करते, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस इक्वेशन 2, क्या मिलेगा अपने को, 3x माइनस 3y, इसे मल्टीप्लाई किए इसे और इसे भी, इक्वल टू 3। और दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 1। तो अपन क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं,
तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस, हो जाएगा माइनस। अब देखो 3x माइनस 5x, 5x बड़ा है तो 5x में से 3x को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 2x, तो बड़े का साइन माइनस, ये एलिमेंट हो गया, 0 हो गया। यह आएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो माइनस को उधर डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू 2 बाय माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 1, ये निकल गया x। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, देखो पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा अपने को, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x देगा -1 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस 1 को ट्रांसफर कर दो साइड में, माइनस वाई इक्वल टू 1 प्लस 1, माइनस 1 है तो हो गया उधर साइड प्लस 1 इक्वल टू 2, माइनस वाई इक्वल टू 2, देयरफॉर वाई इक्वल टू माइनस 2, वाई निकल गया। तो सोल्यूशन क्या आ रहा है, x इक्वल टू -1 वाई इक्वल टू -2, सेम आंसर है, x इक्वल टू -1 वाई इक्वल टू -2, देयरफॉर solution comma x comma y equal to -1 -2 is the solution of given simultaneous equation। पहले क्वेश्चन लिखना ही है, क्या बोल रहा है, देखो क्या वेरीफाई करना है, चेक योर आंसर ऑब्टेन बाय द ग्राफिकल मेथड, तो दोनों आंसर कैसे है, सेम है। द आंसर obtained by elimination and graphical method are same। तो दोनों जो आंसर आए हैं दोनों कैसे हैं, सेम है।